Hello everyone, today we are going to start our next topic, production possibility curve, attainable and not attainable resources, shifting and rotation on PPC. Hello everyone, here is Deepti. Welcome to my economics class. Today I have just taken this topic, production possibility curve. What is the production possibility curve? In the previous video, I have already explained you about how economic problem arise and what is the central problems of an economy. Now today we are going to start the production possibility curve. What is the role of the production possibility curve? One by one we will discuss all these things. Okay. First we have to discuss what is the production possibility curve. Okay. Clearly just listen carefully what I am saying here. Production possibility curve means what? Here it is given. It is a curve showing alternative production possibilities of two goods. Means it shows the graphical representation of the curve. Means whenever we are talking about the curve, जब भी हम किसी curve के बारे में बात करते हैं, it is always just related to the graphical form. Means curve हमेशा एक चीज को indicate करता है कि we are going to make some graphical way of representing something. Okay. So in this production possibility curve, we are going to start after this one explanation. Okay, means we are having only two goods. We are having only two goods. On the basis of two goods, we have to do the alternative production possibilities. Means हमें उसका ऐसा combination बनाना by which we can get in different combination the different types of goods. Okay, means we are having only two goods. उसी two goods से हमें इतने combination करने हैं, उसके ऐसे production बनाने हैं. हर combination means कि different combination means if we are taking A B C D E F, तो हमें इस चीज का इस combination के basis पे इन दो goods का production करना पड़ेगा. Okay, on different to the different basis of the combination. So let us start. If we are going to take here A, here it is given the combination A, B, C, D, E and F. Here it is given all the combination name A, B, C, D, E, F. Okay. Here the weight is given in tons. If I am just taking an example here, if we are having a field here, okay, the farmer is having a field in which the farmer has decided to do the production of wheat and rice both. अगर फार्मर ने डिसाइड किया है कि इस फील्ड पे उसको प्रोडक्शन करना है व्हीट का भी और राइस का भी. ओके, तो फर्स्ट फार्मर डिसाइडेड कि वो डिसाइड किया कि इस फील्ड पे सिर्फ हम राइस का प्रोडक्शन करेंगे. ओनली वी विल डू द प्रोडक्शन ऑफ राइस हियर. उसने डिसाइड किया कि वो सिर्फ राइस का प्रोडक्शन करेगा. ओके, तो फर्स्ट इट इज ऑन दिस फील्ड इट इज जस्ट डन द प्रोडक्शन ऑफ ओनली राइस. उसने सिर्फ राइस का प्रोडक्शन ही किया. व्हाट अबाउट द व्हीट? जब उसने सारे फील्ड पे सिर्फ राइस का प्रोडक्शन किया तो वी कैन से द व्हीट विल बी जीरो. व्हीट को वी विल जस्ट अज्यूम जीरो है. तो व्हीट का क्या होगा प्रोडक्शन? उस समय कुछ भी नहीं होगा क्योंकि उसने सारे फील्ड पे सिर्फ किसकी प्रोडक्शन की है? राइस की. ओके, तो इट विल टेक ओनली 20 टर्न्स. इट हैज जस्ट डन द प्रोडक्शन ऑफ राइस. उसने 20 टर्न सिर्फ राइस की प्रोडक्शन इस फील्ड पे की है एंड व्हीट की उसने कोई प्रोडक्शन नहीं की है. ओके, बट व्हेन वी गो टू बी कॉम्बिनेशन पर अगर हम जाते हैं तो उसने व्हीट ने फार्मर ने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं इसका एक पार्ट जो हूँ व्हीट का प्रोडक्शन कर दूं इसके एक पार्ट पे. तो उसने डिसाइड किया कि ऑन द वन पार्ट ही विल डू द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट. उसने व्हीट का प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया. तो उसने इतने पार्ट्स में व्हीट का प्रोडक्शन किया. वी कैन टेक इट हियर. उसने 1 टन का प्रोडक्शन किया. ओके, तो जब इसने 1 टन का प्रोडक्शन किया तो इसके पास कितना टन का सैक्रिफाइस करना पड़ा? 2. मींस इट विल कम हियर 18. नेक्स्ट हियर इट इज टेकन सी. ओके, अगेन फार्मर डिसाइडेड कि वो व्हीट का प्रोडक्शन फिर करना चाहता है इसी राइस पे जहां पे जिस फील्ड पे इसने राइस की प्रोडक्शन की. उसने कुछ फिर उसने 2 टन्स बढ़ा दिए. 2 टन्स उसने फिर से व्हीट के प्रोडक्शन कर दिए. द राइस विल बिकम 15. ओके, अगेन द फार्मर डिसाइड कि वो व्हीट का प्रोडक्शन फिर वो इंक्रीज करेगा. उसने डिसाइड किया कि चलो हम लोग सिर्फ 3 टन्स का फिर प्रोडक्शन करते हैं. तो अगेन इट स्टार्टेड द प्रोडक्शन ऑफ 3 टन्स. देन व्हीट प्रोडक्शन विल कम टू 11. ओके, अगेन इसने डिसाइड किया इट विल डू द प्रोडक्शन. उसने बोला कि फिर से मैं प्रोडक्शन करता हूँ और उसने क्या किया? प्रोडक्शन और कर दिया. तो हियर इट हैज डन द प्रोडक्शन. हम लोग फिर से फिगर यहाँ बना लेते बिकॉज देयर इज नो स्पेस. ओके,
उसने अभी तक सिर्फ राइस का 2 प्लेस लिया, 1 2 एंड थर्ड वन जब उसने प्लेस लिया तो इसने 11 टन का राइस जो है वो 11 टन उसकी फिर वो कम हो गई. ओके, देन इट इज गिवन ऑन द ई कॉम्बिनेशन. व्हेन वी गो टू द ई कॉम्बिनेशन, तो इसने फिर सोचा कि क्यों ना मैं एक प्रोडक्शन और कर देता हूँ, इसके इतने पार्ट पे मैं और एक प्रोडक्शन कर दूँ. उसने फिर 4 टन की प्रोडक्शन दी, देन इट विल बिकम 6 ईयर. फिर अगेन ही हैज डिसाइडेड कि वो फिर सोचा कि ठीक है मैं क्या करता हूँ, मैं पूरे पे ही प्रोडक्शन कर लेता हूँ, पूरा ही कवर कर लेता हूँ इस फील्ड को, क्यों ना मैं पूरा ही कवर कर लूँ. ओके, तो राइस जो होगा फिर हमारा 0 हो जाएगा एंड इट विल बिकम 5 एंड इट विल बिकम 0. ओके, तो हियर वी कैन सी when we are talking about the A combination पे जब हम बात करेंगे तो we can see here it is given कि wheat have no any production here. wheat का A combination के समय कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, बट राइस ने कितना प्रोडक्शन किया था, ओनली 20. बट व्हेन वी गो टू द बी कॉम्बिनेशन, उसने फिर सोचा कि क्यों ना मैं 1 टन का प्रोडक्शन इस फील्ड पे कर दूं, तो उसने 1 टन की प्रोडक्शन की, तो 18 टन ही कम हो गई. ओके, राइस की. तो उसने डिसाइड किया सेकंड टन प्रोडक्शन करता हूं मैं, 2 टन की प्रोडक्शन करता हूं, तो इट विल बिकम 15. फिर जितना जितना व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा उतना ही राइस का प्रोडक्शन जो है वो कम होता जाएगा. ओके, इज इट क्लियर? So on the basis of this table, we can make the curve here. On the basis of this table, with the help of this table, we will just make the curve here. Without any table, we cannot make any curve. Means आप टेबल के थ्रू ही कोई कर्व बना सकते हो, कोई ग्राफ बना सकते हो. Because in टेबल कोई भी चीज बहुत ही क्लियर अच्छे तरीके से समझाई होती है. ओके, टेबल आपको अगर बनाने आ गया तो आप सारी चीज अच्छे से कर सकते हो. Come to this one. We will take here wheat and here we will take the rice. Okay, we call it the x axis. हम इसको x axis बोलते हैं. we will say it x axis. Okay, x axis पे किसका प्रोडक्शन हुआ, wheat का, and on y axis the production of rice has been done. प्रोडक्शन किसका हुआ, राइस का. Okay, now we can erase. आप इसको यहाँ ले सकते हो समझने के लिए, and you can write it here also, rice. Okay, now just imagine this, we will just put it here 1 2 3 4 and 5 we will write here. Okay, 1 2 3 4 5. Now on this line we can say, we can just see the curve here. It is given 20. We can take the table of 4 1 is 4 4 2 is 8 4 3 is 12 4 4 is 16 4 5 is 20 4 6 is 24. Okay, and here we will take one more also, 6. Now we have to make this curve according to the table. Means आप टेबल देख के ही कर्व बना सकते हो. तो we can see कि प्रोडक्शन किसका कितना हुआ, किसको लॉस हुआ. ओके, तो it is given when wheat is 0. जब उसने राइस की प्रोडक्शन की तो कितने wheat की प्रोडक्शन उस समय उसका लेवल क्या था, 0. तो on 0 we can say rice production is 20. Okay, it is given, we can assume here A. When farmer decided कि वो 1 टन प्रोडक्शन किसका करेगा, wheat का. फार्मर डिसाइड किया कि 1 प्रोडक्शन किसका करेगा, wheat का. तो राइस की प्रोडक्शन कितनी होगी, फिर वो लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी. we will take it here 18. just assume here it is 18. we will just put it here B. Again farmer decided to do the production of 2 tons. उसने डिसाइड किया 3 tons. तो again it will come less. फिर इसका वो कितना हो जाएगा, 0 20 1 it become 118. 2 tons it will be go to 15. just take it here 15. Okay, then it is decided कि वो 3 टन का प्रोडक्शन करेगा wheat का. तो फिर उसको कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा राइस को, 11 टन का. it will become here 11. Okay, just assume it T. Again it has decided it will do the production of 4 tons. wheat ने फार्मर ने डिसाइड किया कि वो wheat का प्रोडक्शन 4 टन का करेगा. तो फिर कितना हुआ, राइस का प्रोडक्शन और कम हो जाएगा. it will become 6 here. Okay, we will assume here E. अगेन फार्मर डिसाइडेड कि अब वो क्या करेगा, वो पूरे फील्ड पे ही
प्रोडक्शन सिर्फ वीट का ही करेगा। तो उसने क्या किया, जो स्पेस थोड़ी सी बची थी, जो स्पेस ये थी, उसने इसको भी कवर कर लिया। मीन्स ओवरऑल इस पे किसका प्रोडक्शन हो गया, वीट का। राइस का फिर क्या हो जाएगा, 0। तो 5 प्रोडक्शन हो गया, 5 टाइम प्रोडक्शन इसका, एंड इस पे राइस का 0। वी विल टेक इट हियर F। देन वी कंबाइन ऑल दिस कॉम्बिनेशन। जब हम ये सारे कॉम्बिनेशन को कंबाइन करेंगे, देन it will form the curve. Okay, let's put it here. Then it will form the curve. It is E. Okay, this is a curve we can say here. You can make it in any form. You can just draw it in a dot also. In this form also you can make. आप ऐसे भी इसको बना सकते हो with the help of the dot. Okay, the way you want to do, you can do it. In this way also you can do. Okay, now you can see this form the curve here. Assume here D, this is C, and this is E, and here it is F. This is your curve. Here we can make the curve. Means this curve shows the combination of these two goods. उसने इस कर्व ने क्या शो करा है यहाँ पे कि जो कॉम्बिनेशन हमारे टू गुड्स को लेके बनी है, तो उसने इस कर्व पे उसको एक रिप्रेजेंट किया है कि टू गुड्स का कितने कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो उसने ए पे भी उसका प्रोडक्शन किया, एक पे भी सेटिस्फाई हुआ, बी पे भी, सी पे भी, डी पे भी, ई पे भी, एफ पे भी। ओके, तो थ्रू डिफरेंट कॉम्बिनेशन उसका प्रोडक्शन होता गया। ओके, एंड इनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो सेम होता है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में हम देखें जब उसने राइस की प्रोडक्शन की तो वीट 0 था, बट एक टाइम पे उसने सिर्फ प्रोडक्शन वीट का किया तो राइस 0 हो गया। मीन्स आप देख सकते हो कि एक इंक्रीज हो रहा तो एक डिक्रीज हो रहा, मीन्स दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल भी एक ही है। नेक्स्ट वी कैन से वी कॉल इट अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हम इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। वी कैन से इट अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये आपका बन गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। नाउ इन दिस वी कैन सी कि जो फार्मर्स है उसने जो डिसाइड किया, फर्स्ट उसने डिसाइड किया था कि इस फील्ड पे वो सारी राइस की प्रोडक्शन करेगा। फिर एट द टाइम क्या होता है कि उसने सिर्फ वीट का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया, जिसके वजह से हमें ये चीज देखने को मिली कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन के थ्रू हम लोगों ने वीट और राइस का जो प्रोडक्शन किया किस बेसिस पे किया। एंड दिस कर्व शो यू द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये जो आपका कर्व है वी कॉल इट अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ओके, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम और भी नेम से बोल सकते हैं। वी कैन टेक द अदर नेम आल्सो। इसके कुछ और भी नेम होते हैं, अगर एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम डिफरेंट नेम से भी बोलते हैं। यू कैन सी हियर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, वी कैन सी हियर प्रोडक्शन बाउंड्री आल्सो। हम इसको प्रोडक्शन बाउंड्री भी बोलते हैं। ओके, वी कैन सी हियर प्रोडक्शन फ्रंटियर, प्रोडक्शन फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। मैं ये थिंकिंग कि कितने सारे इसके नेम्स है। ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। दीज ऑल आर द अदर नेम ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको प्रोडक्शन ऑफ पॉसिबिलिटी कर्व को हम इस नेम से भी जानते हैं। ओके, देयर इज वन मोर थिंग यू हैव टू स्टडी इन द नेक्स्ट टॉपिक। What is the marginal opportunity cost? Marginal opportunity cost क्या होता है, opportunity cost क्या होता है, and इसके assumption क्या है। Okay, assumption we can take it here। हम assumption ले सकते हैं, means आप assume कर सकते हो किस basis पे, किस तरीके से आपने इस चीज को बनाया। सारी चीजें आप ग्राफ को, टेबल को देख के आप ग्राफ बना सकते हो, ग्राफ को देख के आप assumption लिख सकते हो। Okay, we can take the assumption कि with the given resources हम लोगों ने इस चीज को बनाया है। तो फर्स्ट आपका होगा resources are fixed and limited. Resources are fixed and limited. Second, here it is given technology are constant. Technology are constant. Third, you can write resources and technology are
fully utilized. Okay, means this curve show you the production of the resources and technology has been fully utilized. आपका ये कर्व बताता है कि आपने जो भी रिसोर्सेज आपका गिवन था, जितने लिमिटेड रिसोर्सेज थे, मींस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फील्ड, इस फील्ड पे आपने उसका अच्छे से यूज किया एंड एक लिमिट तक जिसकी उतनी लिमिट थी, जितना रिसोर्सेज अवेलेबल था, जितनी टेक्नोलॉजी हमारे पास थी, उसके बेसिस पे हमने ये कर्व बनाया. ओके, तो here we have just completed production possibility curve with the help of the table and the figure. In the next topic, we will go to discuss the features of production possibility curve. Through the features of production possibility curve, we can decide the margin opportunity cost and opportunity cost. जब मैं आपको फीचर्स बताऊंगी तो फीचर्स के बाद मैं आपको मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताऊंगी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताऊंगी. ओके, सो लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. Now come to the features of production possibility curve. Okay, what is the feature of the production possibility curve given here? First, when we can see here, it is given first one, production possibility curves are always downward sloping. Means it always downward sloping. Downward means वो हमेशा नीचे की तरफ वो curve जाती है. Okay. नेक्स्ट इट इज गिवन बिकॉज ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप. इनवर्स रिलेशनशिप मीन्स व्हाट, उसका क्या रीजन रहता है कि जो कर्व आपका गिवन है यहाँ पे डाउनवर्ड के डायरेक्शन में जा रहा है. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस? तो देयर इज अ रीजन बिकॉज इज अ इनवर्स रिलेशनशिप. ओके, इनवर्स रिलेशनशिप होता है. विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल वी कैन सी इनवर्स रिलेशनशिप होता क्या है. ओके, आपका ये जो कर्व है ये डाउनवर्ड फॉर्म में क्यों स्लोप कर रहा है, व्हाई इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड. Okay, so there is a reason behind this. We can see it here in the table. This is concentrate here. What is given here? Wheat, it is given as 0. 0 की स्टार्टिंग में एक कॉम्बिनेशन में देखा था तो wheat की प्रोडक्शन कितनी थी? 0. राइस की कितनी प्रोडक्शन थी? 20. Okay. Then wheat की प्रोडक्शन 1 टन्स इंक्रीज हुई तो राइस की प्रोडक्शन 18 लेस हो गई. Then wheat की प्रोडक्शन 2 टन्स हुई. Then rice become again down. ओके, देन वीट की प्रोडक्शन 3 पे हुई तो राइस की जो प्रोडक्शन वो फिर से कम हो गई 11. देन वीट की प्रोडक्शन 4 टन्स और इंक्रीज हुई तो राइस की प्रोडक्शन फिर और लेस हो गई. देन 5 टन्स वीट की प्रोडक्शन फिर से हुई. देन राइस की प्रोडक्शन क्या हो गई एट लास्ट 0. ओके, तो इट इज गिवन द एट डिफरेंट कॉम्बिनेशन द प्रोडक्शन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ गुड्स, व्हीट एंड राइस. तो इट मीन्स दैट कि एक टाइम पे क्या था, जो राइस की प्रोडक्शन थी वो हाई थी. ओके, इन दिस फॉर्म. बट व्हेन वी गो टू द व्हीट, जैसे ही व्हीट की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, बढ़ने लगी, वैसे ही क्या हुआ, राइस की प्रोडक्शन जो है वो लेस होती गई. इज इट क्लियर? तो व्हीट की प्रोडक्शन हुई एंड राइस की क्या हो गई, लेस हो गई. वी कैन से इट हियर देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप. आप बोल सकते हो व्हेनेवर यू विल जस्ट फाइंड आउट दिस वे और दिस वे, जब आपको कुछ ऐसे साइन सिंबल्स देखने को मिलते हैं तो मीन्स दिस इज द इनवर्स रिलेशनशिप. मीन्स ये किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, दिस एरो विल गो इन द अनदर डायरेक्शन. इट शोज द इनवर्स रिलेशनशिप. ओके, तो फर्स्ट फीचर नाउ यू कैन क्लियर व्हाट इज व्हाई दिस कर्व गोज स्लोप डाउनवर्ड. आपको रीजन पता चल गया कि ये जो आप कर्व देख रहे हो ये क्यों नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है. देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस ड्यू टू द इनवर्स रिलेशनशिप. इज इट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. हियर इट इज गिवन पीपीसी आर ऑलवेज कॉन्केव टू ओरिजिन. Here it is talking about this point. This we can say this is the origin. ये आपका origin है. Okay. तो it is given PPC are always means हमेशा क्यों वो अपने concave to origin. Origin के आप देखोगे तो origin पे वो क्यों concave रहता है. Okay. Due to increase in marginal opportunity cost. अब इसके पीछे क्या रीजन है? Sloping downward का रीजन भी नो कि inverse relationship है. But concave to origin due to why it is just concave to its origin? Because due to increase in marginal opportunity cost. This is the question arising in marginal opportunity cost. अब marginal opportunity cost आपको समझने से पहले एक चीज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि opportunity cost क्या होती है. What is the meaning of the opportunity cost? Opportunity means आप समझ जाओ कि जब आपको किसी चीज का मौका मिलता है कोई चीज हासिल करने का, बट आप उसके चक्कर में कोई नेक्स्ट चीज जो रहती है आप उसको प्रेफर नहीं करते हो. Okay, we can say the definition here. Opportunity cost definition. It is the best next. It is the best next
sorry, it is the next best alternative. It is the next best alternative foregone. Okay, this is the definition of opportunity cost. Opportunity cost means what? You can take the example of example के फॉर्म में इस चीज को अच्छे समझ सकते हैं कि opportunity cost का मतलब क्या होता है. If I am a teacher and I have just gone for the I have just get a offer, हमें एक ऑफर मिलता है कि मेरी कहीं जॉब लग गई MNC कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, जहाँ पे जो उसका सैलरी है, जो उसकी इनकम है वो है आप बोल सकते हो मंथली बेसिस पे 60,000. बट उसी टाइम मुझे एक और ऑफर आता है बैंक से कि बैंक में एज ए मैनेजर पोस्ट मुझे मतलब वहाँ पे पोस्ट दी गई है मैनेजर की, तो बैंक का जो मंथली बेसिस सैलरी मुझे मिलेगी वो है 85,000. ओके, तो एमएनसी कंपनी का 60,000 है एंड आप बोल सकते हो बैंक में जो मुझे सैलरी मिलेगी वो 85,000 है. एंड एज ए टीचर वी कैन से कि मेरी सैलरी समझ जाओ 30,000 है. ओके, तो जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी मुझे दिखेगा वो बैंक का ही दिखेगा कि बैंक में जो है अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब लगती है, मुझे बैंक में जॉब मिल जाती है और 85,000 है, तो मेरे लिए वो बेस्ट ऑप्शन है कि मैं बैंक को प्रेफर करूंगी, बैंक की जॉब को प्रेफर करूंगी. ओके, बट अगर बैंक को छोड़ के आप नेक्स्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन देखोगे तो आपके पास कौन सा नेक्स्ट ऑप्शन बेस्ट रहेगा. तो बैंक के बाद अगर आप देखो 85,000 की जॉब है, बट व्हेन यू गो टू द एमएनसी कंपनी वो आपकी 60,000 की है. ओके, तो आप सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव किस पे जाओगे? 60,000. मींस आप एमएनसी कंपनी को, फिर बैंक को जब आप लेफ्ट करोगे तो यू विल गो फॉर द एमएनसी कंपनी. तो यहाँ पूछा है कि आप एक कॉमोडिटी तो लेते हो बट आपको नेक्स्ट बेस्ट कॉमोडिटी अगर देखी जाए उसके अलावा तो आप किस पे जाओगे? तो वी कैन गो विद द एमएनसी कंपनी. मींस अगर हम 80,000 बैंक के जॉब को आप बोल सकते हो कि आप बैंक की जॉब कर रहे हो और आपको 85,000 मिल रही है, तो अगर आप उसके अलावा किसी और नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव से कंपैरिजन देखा जाए तो आप किस ऑप्शन को बेस्ट समझते हो? मींस उससे पहले एक और बेस्ट ऑप्शन है आपके पास एमएनसी कंपनी का, जिसमें आपको 60,000 सैलरी पर मंथ मिलेगी. इज इट क्लियर? इट मीन्स व्हाट कि अगर आपको एक चीज लेते हो तो आपको उसके लिए जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है उस चीज को आपको गवाना पड़ता है. ओके, तो इट इज गिवन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स व्हाट फॉर वन अल्टरनेटिव. आप एक ऑप्शन के लिए आपको नेक्स्ट ऑप्शन को रिमूव करना पड़ता है, आप एक ही ऑप्शन के साथ जाते हो. लेकिन नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव मीन्स अगर एक ऑप्शन आपने डिसाइड किया बट उससे बेस्ट अल्टरनेटिव आपका क्या है? आपका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव हो गया एमएनसी कंपनी. ओके, ये तो नहीं कि आप बैंक की जॉब करो तो डायरेक्ट आप फिर टीचर की जॉब पे आ जाओ. तो आपका बीच में क्या है? बीच में तो आपका आ रहा है एमएनसी कंपनी, आप उस चीज की तरफ फिर जाओगे तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव आपका होता है. ओके, जो कि आपने फॉरगॉन कर दिया, मींस आपने उस चीज का त्याग कर दिया. ओके, नाउ कम टू दिस वन. हियर इट इज गिवन द एमओसी. आपका इस टेबल में एक न्यू फॉर्म गिवन है यहाँ पे एमओसी. व्हाट इज द एमओसी? द फुल फॉर्म एमओसी इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. एमओसी का फुल फॉर्म क्या होता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ओके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम लोगों ने समझ लिया विद दैट ऑफ द एग्जांपल. नाउ वी विल गो टू द एमओसी. MOC means कि it is given, it refers to the number of unit of a commodity sacrifice. means आपको एक यूनिट ऑफ अ कॉमोडिटी का सेक्रीफाइस करना पड़ता है बिकॉज टू एक्वायर द अनदर यूनिट ऑफ अ कॉमोडिटी. आप दूसरी कॉमोडिटी को एक्वायर करने के लिए आपको अपने फर्स्ट कॉमोडिटी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है. ओके, तो here it is given when we do the production of zero है, जब जीरो व्हीट का जो प्रोडक्शन कुछ नहीं था, जीरो था, राइस की प्रोडक्शन 20 थी. ओके, तो ए कॉम्बिनेशन में व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द ए कॉम्बिनेशन, अगर हम ए कॉम्बिनेशन की बात करें तो जीरो पे 20 प्रोडक्शन किसका होता है? राइस का. तो मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ है ही नहीं, क्योंकि मीन उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि उसने टोटल प्रोडक्शन किसका कर रखा था? फील्ड पे, एक फील्ड पे उसने टोटल प्रोडक्शन किसका कर रखा था? राइस का. सिर्फ राइस का ही प्रोडक्शन उसने किया था. तो फर्स्ट आपका डैश रहेगा. जस्ट पुट इट हियर, nil मींस ब्लैंक है. नेक्स्ट व्हेन फार्मर डिसाइडेड, जब फार्मर ने डिसाइड किया कि वो 1 टन व्हीट प्रोड्यूस करेगा तो उसने 18 मींस तो राइस को कितने चीज का सैक्रिफाइस करना पड़ा? बी कॉम्बिनेशन पे. ए पे तो उसका जीरो था एमओसी, बट मैंने गो टू द बी पे उसने 1 प्रोडक्शन किया व्हीट का, तो राइस को कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा? राइस को सैक्रिफाइस करना पड़ा 2 टन्स का. ओके, व्हेन वी गो टू द सी कॉम्बिनेशन तो व्हीट ने फिर 2 टन्स अपना इंक्रीज कर दिया, तो राइस को फिर कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा? 3. ओके, व्हेन वी गो टू द D1 तो
तो फार्मर डिसाइडेड कि वो 3 टन ऑल व्हीट का प्रोडक्शन करेगा, तो फिर आपका यहाँ पे कितना कम हो जाएगा 4। देन इट इज डिसाइडेड इन ई कॉम्बिनेशन। अगर ई कॉम्बिनेशन पे हम आते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे कि 4 टन उसने व्हीट की प्रोडक्शन की, तो राइस की प्रोडक्शन जो है वो और कम हो जाएगी और डिक्लाइन हो जाएगी। ओके, तो इट वी विल से इट विल कम हियर 5 सेक्रीफाइस करना, 5 टन सेक्रीफाइस करना पड़ा राइस को डी के ई कॉम्बिनेशन आने के लिए। व्हेन इट कम टू ई टू एफ, एफ के कॉम्बिनेशन पे आया तो 5 इट इज गिवन, तो इसने कितना सेक्रीफाइस किया यहाँ पे, यू कैन सी हियर 6। मीन्स दिस इज द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मीन्स आपको एक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए आपको दूसरे प्रोडक्शन को सेक्रीफाइस करना पड़ा। इज इट क्लियर? एंड वन मोर थिंग हियर इट इज गिवन, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक फॉर्मूला होता है आपका ज्यादा डेल्टा सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गेन। ओके, दिस इज द फॉर्मूला गिवन हियर। द फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला आपका होता है डेल्टा सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गेन। इन शॉर्ट यू कैन राइट हियर एस and you can short here in bracket G. Delta sacrifice upon delta gain is the formula of MOC। MOC का ये फॉर्मूला होता है, बट हेयर जो आपको ट्रायंगल के फॉर्म में दिख रहा है, हम इसको ट्रायंगल नहीं बोलेंगे, हम उसको इकोनॉमिक्स के टर्म में डेल्टा बोलते हैं। इसका मतलब होता है चेंज, डेल्टा को हम चेंज बोलते हैं। इज इट क्लियर? डेल्टा सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गेन मीन्स अगर हम एक कम्युनिटी का प्रोडक्शन करते हैं तो उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें जो उसकी अनदर कम्युनिटी है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ओके, तो इट इज गिवन द टू वी हैव ऑलरेडी लर्न कि कर्व कैसे बना, टेबल के थ्रू हम लोगों ने कर्व बनाया, कर्व के थ्रू हम लोगों ने असम्पशन डिसाइड किया। फिर फीचर इट इज गिवन है, फीचर्स में एमओसी हमारे नया चीज था कि एमओसी होता क्या है, एमओसी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एमओसी का फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ लिया। बट एक बार हम लोग फीचर्स को देख लेते हैं फिर से, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी पेड द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जस्ट गो टू द फीचर्स हियर। पीपीसी आर ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। पीपीसी हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग के फॉर्म में क्यों रहता है, क्योंकि ड्यू टू द इनवर्स रिलेशनशिप। आई शो यू दिस थिंग। मीन्स अगर एक की प्रोडक्शन बढ़ रही है, दूसरी की प्रोडक्शन जो है वो डिक्लाइन होगी। नेक्स्ट थिंग हियर इट इज गिवन, पीपीसी आर ऑलवेज कॉन्केव टू ओरिजिन ड्यू टू इंक्रीज इन मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब भी इंक्रीज इन मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा तो आप उसको कॉन्केव के फॉर्म में देखोगे, एंड जब डिक्रीज इन मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा तो विल गो विद द कॉन्वेक्स। एंड जब आपका कांस्टेंट रहेगा तो जब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी कांस्टेंट रहेगी तो विल जस्ट मेक अ स्ट्रेट लाइन। ओके, इज इट क्लियर? तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। विद टेबल वी कैन जस्ट फाइंड आउट द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की एक ही प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें दूसरे के प्रोडक्शन को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। नेक्स्ट इसका एक फॉर्मूला होता है डेल्टा सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गेन। डेल्टा को हम बोलते हैं चेंज इन द इकोनॉमिक्स टर्म। ओके, बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे किसको हम ट्रायंगल बोल देते हैं। नो, इट इज नॉट अ ट्रायंगल, वी कॉल इट अ डेल्टा, इट मींस चेंज। इज इट क्लियर? एंड दिस इज अ कर्व, वी कॉल इट अ पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, डिफरेंट नेम से इसको लोग जानते हैं। एंड दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में श्योरली ये एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, वी विल जस्ट गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। इट इज अबाउट अटेनेबल और नॉट अटेनेबल कॉम्बिनेशन। ओके, विल डिस्कस रिलेटेड टू दिस फिगर। इस फिगर के बेसिस पर हम लोग अटेनेबल और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन, talk about the attainable and unattainable combination of resources, or you can say attainable combination or attainable resources, unattainable combination, unattainable resources. Okay, first is go to the attainable combination. What is the attainable and unattainable combination. Okay, here it is given attainable and unattainable combination or resources, it is given here. Okay, all this one we are going to discuss on the PPC curve. Okay, production possibility curve पे चीज को हम समझेंगे। When we draw this PPC curve, then you can see this is a we can say this is a x-axis, this is a y-axis, here it is 0.
we can make it a curve here. It is a different name, don't be confused कि attainable unattainable, अभी ये नया टॉपिक कौन सा है, don't be confused, it is very easy to understand and सबसे easy topic आपका यही है, you can just catch this topic very easy. Just see carefully. If we can say here it is given the combination A, B, C, D, E and F is given here. Okay, A, B, C, D, E and F is given here. Here already discuss कि A, B, C, D, E, F क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने अपने रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइज किया है. जितनी भी रिसोर्सेज गिवन थी वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन पे हम लोगों ने उस टू गुड्स का अच्छे से यूटिलाइज किया है विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, बट अगर इन अ केस आपका एक पॉइंट यहाँ पे आता है, वी कैन जस्ट टेक इट हियर G एंड 2 पॉइंट्स आपके आउटसाइड आते हैं, वी कैन टेक इट हियर H एंड I. ओके, तो आप जो इसके अंदर ये चीज देख रहे हो, दिस G1 we can what this one is the attainable resources. attainable combination ये आपका शो कराता है. why? क्योंकि अगर ऑन द पीपीसी हम बात करें, पीपीसी के ऊपर के कॉम्बिनेशन की हम बात करें, तो यहाँ पे हमारे रिसोर्सेज जो है वो फुल्ली यूटिलाइज होते हैं. और अगर उसके इन्वर्ट की बात करें, मीन्स अंदर की तरफ की हम बात करें, तो जो यहाँ पे इसके अंदर के पॉइंट्स आएंगे वो भी हमारे अटेनेबल कॉम्बिनेशन होंगे. इज इट क्लियर? मीन्स if you are having a 15,000 rupees and 15,000 हम लोग को सारे एक्सपेंस करने हैं, सारी चीज खरीदनी है, परचेज करनी है, तो हम लोग एक लिमिट में करेंगे. जितने हमारे पास मनी है हम उस चीज का यूटिलाइज करेंगे. अगर उसके अंडर हम यूटिलाइज करते हैं 14,000 का या 10,000 का, तो हम लोगों ने अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किया, मतलब हमने रिसोर्सेज का कम इस्तेमाल किया. ओके, तो हम लोगों ने 15,000 में से 11,000 का ही सब यूज किया, तो मीन्स इट विल गो टू द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अगर वो गुड्स के फॉर्म में देखें, कमोडिटी के फॉर्म में देखें, तो अगर इन्वर्ट शिफ्ट होता है तो इन्वर्ट पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे कोई, तो वी कॉल इट अटेनेबल कॉम्बिनेशन और अटेनेबल रिसोर्सेज. ओके, बट व्हेन वी गो टू द आउटसाइड, जो इसकी आउटसाइड आपका चीज दिया रहता है, ओके, दिस पॉइंट वी कॉल इट अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन. वी कैन कॉल इट अनअटेनेबल combination and this one is a attainable combination. Attainable and unattainable combination. Attainable now you can clear कि means fully utilize करना या under utilization करना, जो भी इसके अंडर में इन्वॉल्व होते हैं वो भी call it attainable combination. मीन्स हमने अपने रिसोर्सेज के लिमिट में कुछ एक लिमिट में यूटिलाइज किया है, उसके बियॉन्ड नहीं गए. जब उसके बियॉन्ड जाने की बात आती है, इसका मतलब कि कुछ रिसोर्सेज में इंक्रीमेंट हुआ है या तो टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस हुए हैं. जब इसके बियॉन्ड की बात करेंगे, इस पॉइंट की बात करेंगे, तो वी कैन कॉल इट अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन. ऑन द पीपीसी कर्व और इनवर्ट द पीपीसी कर्व वी कैन से इट इज अटेनेबल, और बियॉन्ड द पीपीसी कर्व वी कैन से इट अनअटेनेबल combination unattainable resources. Okay, so with the help of this figure we can now say what is the attainable combination or attainable resources and what is the unattainable combination unattainable resources. Is it clear? Means हमने एक टाइम पे रिसोर्सेज का अच्छा यूटिलाइज किया, एक लिमिट में यूटिलाइज किया, उसका ओवर यूटिलाइजेशन नहीं किया. ओवर यूटिलाइजेशन मीन्स बियॉन्ड दिस टाइम मीन्स ओवर यूटिलाइजेशन, एंड अंदर की अगर हम बात करें तो इट इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. मैंने मतलब उसका हम लोगों ने कम यूज किया, कम यूटिलाइज किया. तो दिस इज अटेनेबल एंड दिस इज अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन. जो पॉइंट्स, जो भी कॉम्बिनेशन हमारा इस कर्व के पीपीसी कर्व के अंदर आता है, वी कैन कॉल इट अटेनेबल कॉम्बिनेशन मींस अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. एंड जो हमारा पीपीसी कर्व के बाहर हमें डॉट दिख रहा है, वी कैन कॉल इट अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज और unattainable combination or unattainable resources we can say. आप टू नेम आप इसके बोल सकते हो, unattainable combination और unattainable resources या attainable combination attainable resources. Is it clear? Attainable and unattainable combination, this is more important 2 point. Maybe आपको क्लियर हो गई होगी ये चीज. Okay, now come to the next one. It is very important. पीपीसी के आप बोल सकते हो कि पीपीसी में दो टाइप्स होते हैं उसके. आप बोल सकते हो एक शिफ्टिंग वो करता है, एक रोटेट करता है. तो शिफ्टिंग किस फॉर्म में करता है, रोटेट किस फॉर्म में करता है, we will discuss after this. Okay, now let us discuss the shifting and the rotation form on the PPC. Now let us start the PPC shifting and rotation term. Okay, in PPC we can find out two forms of in PPC we can see it here. PPC two form में अब basis पे form यहाँ आपको देखने को मिलेगा. PPC will be in two forms. We can say it here shifting. Okay, एक आपको shifting के form में दिखेगा and
एक आपको रोटेशन के फॉर्म में देखने को मिलेगा पीपीसी कर्व। ओके, रोटेशन शिफ्टिंग। फर्स्ट गो टू द शिफ्टिंग। शिफ्टिंग फॉर्म में अगर हम देखें पीपीसी को, तो वी कैन टेक इट हियर, दिस इज अ line, this is the x axis, this is the y axis. Okay, this is the x axis, this is the x axis, this is y axis. Now you can say here, एक कर्व हमने ड्रॉ किया, दिस इज द पीपीसी कर्व, इज इट क्लियर? दिस इज द पीपीसी कर्व। ओके, अब यू विल बी कंफ्यूज कि ये सिर्फ एक ही कर्व अभी तक हम लोगों ने ड्रॉ किया, बट इसमें टू कर्व्स और बनते हैं, जो कि एक बार इनवर्ट की तरफ बनते हैं और एक तरफ आउटवर्ड की तरफ एक कर्व बनते हैं। ओके, व्हेन वी गो टू द इनवर्ट, ओके, व्हेन वी गो टू द आउटवर्ड, इट मे बी इन दिस फॉर्म। तो फर्स्ट हम आउटवर्ड का एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जब हम आउटवर्ड एक कर्व बनाते हैं, पीपीसी के बियॉन्ड एक कर्व बनाते हैं, तो उसका क्या यूज है, क्या पर्पज है कि हम लोग उसके बाहर एक और कर्व बनाते हैं कॉन्केव के फॉर्म में। ओके, तो वी कैन टेक इट हियर। ओके, हियर इट इज गिवन this one more curve in the concave form. PPC का कर्व जो है वो तो concave form में रहता ही है, क्योंकि due to the you can say due to the increase in the marginal opportunity cost, concave के फॉर्म में देखने को मिलता है। But we can draw it here one more curve outside the PPC. PPC के बाद भी हम लोग एक कर्व बनाते हैं, और ये PPC के बाद कर्व देखने को हमें क्यों मिलता है? Because due to the growth in the economic development, economic में ग्रोथ देखने को मिलता है, इसलिए आप बोल सकते हो कि जो रिसोर्सेज के बेस पे जो प्रोडक्शन होता है वो अधिक होता है। तो ये क्या होता है, फर्स्ट इट इज ए एंड बी, तो यू कैन टेक इट A1 B1। जैसे जैसे रिसोर्सेज में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, चेंजेस देखने को मिलती है टेक्नोलॉजी में, वैसे क्या होता है आपका ये कर्व एक लाइन और आगे बढ़ जाता है, इट फॉर्म A1 एंड B1, मीन्स आपको न्यू कर्व देखने को मिलता है, बिकॉज देयर इज अ इकोनॉमिक ग्रोथ इन आवर कंट्री। इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलता है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों होता है? क्योंकि आप बोल सकते हैं जो भी जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन बढ़ती है, ओके, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोगों को काम में लगाया जाएगा, जिससे कि रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज होगा, प्रोडक्शन भी अच्छे से होगी। ओके, तो हमें ये चीज बाहर देखने को मिलती है, आउटवर्ड शिफ्ट होती है, मीन्स वी कैन से इट राइटवर्ड और आउटवर्ड ही बोल सकते हो। जब ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो इट मीन्स we can say this is there is a changes in resources and technology, increment in resources and changes in technology, means अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है किसी प्रोडक्शन को करने के लिए। एक कैपिटल गुड्स में अच्छी इन्वेस्टमेंट की जा रही है, जिससे अच्छी मशीनरी को परचेज किया जा रहा है, अच्छी प्रोडक्शन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, प्रोडक्शन अच्छे फॉर्म में हो। तो यू कैन टेक द एग्जांपल, if we take the example of Make in India, the respected Narendra Modi has found this Make in India, उन्होंने निकाला। तो उसमें ये चीज था कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उनको मोटिवेट किया जाए कि वो कुछ ऐसा मैन्युफैक्चर करें जो कि इंडिया में ही अवेलेबल हो, जिसकी हमें देखने को मिले फ्यूचर में कि हम लोगों ने एक्सपोर्ट बहुत किया है इम्पोर्ट के कंपेरिजन। ओके, हम लोगों ने एक्सपोर्ट बहुत कम किया इम्पोर्ट के कंपेरिजन, हम एक्सपोर्ट अधिक करें, इम्पोर्ट कम करें। इज इट क्लियर? पहले इम्पोर्ट में क्या होता है कि फॉरेन से हम लोग कोई चीज लेते थे, चाइना से सारी चीज बहुत सारी चीजें हम लोग लेते थे कुछ प्रोडक्शन के काम के लिए, नए नए टेक्नोलॉजी भी बाहर से हम लेते थे कि कुछ प्रोडक्शन हमारा अच्छे लेवल पे हो सके। बट उन्होंने डिसाइड किया क्यों ना हम अपने कंट्री में कुछ ऐसा मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट करें कि सारी चीजें हम लोग को यहीं पे देखने को मिले, और जो बाहर के लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट जो करें वो हमारे कंट्री में ही करें। ओके, और हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम वो चीज एक्सपोर्ट कर सकें। इज इट क्लियर? तो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का ये केस तो हमेशा चलता आ रहा है, बट उन्होंने बोला कि हम लोग एक्सपोर्ट अधिक करें, जिससे कि फॉरेन वाले लोग हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट अधिक करें। इन्वेस्टमेंट अधिक होगा तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन लेवल होगा, रिसोर्सेज की इंक्रीमेंट देखने, रिसोर्सेज में हम लोग को इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, रिसोर्सेज इंक्रीज होंगी, प्रोडक्शन अच्छी खासी होंगी, जिससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा बढ़ जाएगा। विल बी ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, आप बोल सकते हैं रिसोर्सेज में हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। ओके, इसलिए आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस वन, जब हम इस कर्व की बात करेंगे तो इट इज फुल्ली यूटिलाइज्ड और फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आप बोल सकते हैं फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। व्हेन वी टॉक अबाउट दिस वन,
कर्व, जो हम इन्वर्ट कर्व की बात करेंगे तो इट मीन्स अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यू कैन से इट विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड। जब राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो वी कैन से कि रिसोर्सेज में ग्रोथ देखने को मिली है। जब पीपीसी कर्व भी होगा तो मीन्स हमने अपने रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइज किया कि एफिशिएंट फॉर्म में। और फिर जब इनवर्ट की बात करेंगे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो वी कैन से इट इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मीन्स हमने रिसोर्सेज का अच्छा यूटिलाइज नहीं किया, कम यूटिलाइज किया है। यू कैन टेक द एग्जाम्पल, टेक द एग्जाम्पल ऑफ डीमोनेटाइजेशन। जो डीमोनेटाइजेशन हमारा मे बी 2014 में आया था, तो डीमोनेटाइजेशन की वजह से चीजें बहुत हम लोग को देखने को मिली कि हम लोग को मनी की प्रॉब्लम होने लगी। तो जो बड़े बड़े लार्ज स्केल प्रोडक्शन होते हैं उनको क्या होता है, वो सारी चीजें जो भी सप्लाई करते हैं लाते हैं उनका चेक के बेसिस पे सारी चीजें होती हैं। तो उस समय ऐसी फैसिलिटी नहीं थी कि वो सारी चीजों को कर सके, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन की प्रॉब्लम चल रही थी, उस समय मनी की प्रॉब्लम चल रही थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनका जो वो अपने वर्कर्स को पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, अच्छे से वेजेस नहीं दे पा रहे थे, लेबरर्स कम देखने को मिल रहे थे, क्योंकि जब उनको वेजेस आप अच्छे से नहीं दोगे तो लेबरर्स आपका काम क्यों करेंगे। ओके, तो इतने सारे रीजन थे जिससे उनका प्रोडक्शन भी रुक गया था। तो आप बोल सकते हो उस टाइम क्या था, डीमोनेटाइजेशन समय रिसोर्सेज की ग्रोथ भी कम हो गई थी और हमें अच्छी टेक्नोलॉजी देखने को भी नहीं मिली एंड प्रोडक्शन जो लेवल था हमारा वो डाउनवर्ड हो गया था। तो इसलिए हम लोगों ने इसको लेफ्ट शिफ्ट कर दिया एंड वी कैन कॉल इट इनवर्ड, एंड जो आप बाहर देख रहे हो वी कैन कॉल इट आउटवर्ड। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। One example you have taken demonetization, make in India. Make in India is for the rightward shift. एक example आप ले लो. And when we talking about the demonetization, you can take the invert. आप invert का example ले सकते हो इसको. Okay. तो all these type of the reason means आपको जहाँ प्रोडक्शन देखने को अधिक मिलेगा या रिसोर्सेज में ग्रोथ देखने को मिलेगी, टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा, तो ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा ये कर्व। और जब टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज नहीं होगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हम यूज नहीं करेंगे या रिसोर्सेज की कमी देखने को मिलेगी, प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी नहीं बढ़ेगी, तो हमारा जो ये कर्व रहेगा वो इनवर्ट शिफ्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, शिफ्टिंग वी आर कंप्लीटेड। कम टू द रोटेशन। रोटेशन मीन्स वो अपने जगह पे ही वो चीज रोटेट करता है, मीन्स अब उसी एक वजह से कि आप बोल सकते हो कि जब हम शिफ्टिंग की बात करेंगे तो उसमें हमें जो भी चीज गुड्स एक्स में जो भी प्रोडक्शन होगा तो गुड्स वाई में भी उतने ही प्रोडक्शन देखने को मिलेंगे। मींस अगर कोई कंपनी गुड्स एक्स गुड वाई दोनों का प्रोडक्शन कर रही है तो जब कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो दोनों प्रॉफिट में जाएगा, दोनों का प्रोडक्शन इक्वल होगा। लॉस में जाएगा तो दोनों इक्वली लॉस में जाएंगे। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रोटेशन, तो इसमें क्या होता है, या तो गुड्स एक्स का इंक्रीमेंट होता है देखने को मिलते हैं, रिसोर्सेज की इंक्रीमेंट होती है गुड एक्स की, इंक्रीज इन चेंज इन टेक्नोलॉजी गुड एक्स का, या तो वाई का कम हो जाता है, या तो वाई का आपको देखने को मिलेगा इंक्रीमेंट, या तो आपको एक्स का देखने को मिलेगा। ओके, मींस एक लॉस में जाएगा तो एक प्रॉफिट में जाएगा, एक प्रॉफिट में जाएगा तो एक लॉस में जाएगा। इसमें इक्वल बेसिस में शिफ्टिंग होती है, इसमें नॉन इक्वल बेसिस में आपकी अनइक्वल बेसिस में आपके इसमें रोटेशन होते हैं। यू कैन टेक इट हियर। व्हेन वी मेक दिस कर्व, हम इस कर्व को बनाते हैं। ओके, दिस इज अ एक्स एक्सिस, this is a y-axis. Okay, you can say this one. You can say this is a curve. This is a PPC curve. ये आपका PPC curve है. This one is a y. This one is a good x. ये good x का है. x axis पे, y axis में हम good y को लेते हैं. Imagine करते हैं, assume it कि हम इस चीज को ले रहे हैं. Okay. After this, if we can see द क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज जो है, रिसोर्सेज की क्वांटिटी वो हमें गुड एक्स में देखने को मिलती है कि बढ़ रही है, ओके, इंक्रीज कर रही है। तो वाई एक्सिस में हमारा कोई चेंज नहीं होगा, बट एक्स एक्सिस में हमें चेंज देखने को मिलेगा। ओके, दिस इज ए बी, बट जैसे ही एक्स की क्वांटिटी चेंजेस इन इंक्रीज इन रिसोर्सेज या चेंजेस इन टेक्नोलॉजी में देखने को मिलेगा, मीन्स अच्छे रिसोर्सेज का यूटिलाइज हो रहा है, फुल्ली यूटिलाइज हो रहा है, एक अच्छे बेसिस पे यूटिलाइज हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है और प्रोडक्शन बहुत अच्छे फॉर्म में हो रहा है। तो जो एक्स एक्सिस मींस जो गुड्स की सप्लाई, गुड्स एक्स का प्रोडक्शन हो रहा है बहुत अच्छे लेवल पे हो रहा है, बिकॉज द रिसोर्स इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड चेंजेस इन रिसोर्सेज बताता है कि जो ये वाई एक्सिस है वो तो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। मैंने आपको बताया कि मैंने टॉकिंग अबाउट शिफ्टिंग, तो दोनों का इक्वल बेसिस पे सारी चीजें होती हैं, या तो कम होंगी या तो अधिक होंगी।
बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट रोटेशन तो क्या किसी एक का लॉस होगा, किसी एक को का आप बोल सकते हो प्रॉफिट होगा। ओके, तो ये आपका आउटवर्ड शिफ्ट हो गया। ओके, तो जब एक्स एक्सिस की क्वांटिटी में हमें इम्प्रूवमेंट, रिसोर्सेज की क्वांटिटी में हमें देखने को इम्प्रूवमेंट मिलता है, टेक्नोलॉजी अच्छी यूज की जाती है, तो आपका क्या होता है, एक्स एक्सिस जो रहता है वो आउटवर्ड की तरफ शिफ्ट होता है। ओके, बट वाई में कोई चेंजेस नहीं होता है। बट जैसे ही एक्स एक्सिस की क्वांटिटी डिक्रीज होती है, गुड्स की क्वांटिटी डिक्रीज होती है, तो वैसे ही आपका ये अंदर की तरफ आपका शिफ्ट हो जाता है। मेक इट इन ब्रॉड फॉर्म, आप कंफर्म हो जाओगे कि डिक्लाइन फॉर्म में जा रहा है, मीन्स उसका रिसोर्सेज अच्छे से यूज नहीं हो रहा है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। ओके, तो ये आपका एक्स एक्सिस का था। नाउ यू कैन सी, नाउ यू कैन सी व्हाट इज द चेंजेस इन वाई एक्सिस। जब हमें कोई चीज वाई एक्सिस में देखने को मिलेगी चेंजेस, तो वाई एक्सिस में क्या होगा, व्हेन वी टेक द वाई एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस पे था वाई, गुड्स वाई, दिस इज गुड्स वाई, दिस इज गुड्स एक्स। ओके, ये गुड्स वाई है, गुड्स एक्स है। अभी तक हम लोगों ने एक्स में इंप्रूवमेंट देखा, उसके टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट देखा, उसके रिसोर्सेज को बढ़ते हुए देखा, प्रोडक्शन अच्छे से होते हुए देखा। बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस का क्या होगा, पहले तो आप एक सिंपल कर्व बना लेना, सिंपली कर्व। वाई एक्सिस का क्या होगा, एक्स कांस्टेंट रहेगा, ए बी एंड ये आपका हो जाएगा b1। मीन्स आपके एक्स में हमें, वाई में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, मीन्स वाई की रिसोर्सेज जो है वो बढ़ रही है। ओके, रिसोर्सेज अच्छे से आप बोल सकते हैं यूटिलाइज हो रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उनका इंप्रूवमेंट हो रही है उनका टेक्नोलॉजी में। तो आप बोल सकते हो कि बहुत अच्छे से गुड्स का यूटिलाइज किया जा रहा है, गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो आपको वाई एक्सिस में देखने को मिलेगा। बट जैसे आपको पता चलता है कि इसकी क्वांटिटी जो गुड्स वाई क्वांटिटी है उसका यूटिलाइज अच्छे, मतलब वो कम है, बहुत लो है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है, बहुत अच्छी कैपिटल नहीं लगाई जा रही है उसमें, बहुत अच्छा मशीन का यूज नहीं हो रहा है, और जिसके वजह से बहुत इन सबको नुकसान को देखना पड़ रहा है। तो वी कैन से कि जो गुड वाई का है वो डिक्लाइन हो जाएगा, इट विल गो इन द डिक्लाइन फॉर्म। ओके, मीन्स सिंपल वे में दिस इज अ कर्व। जब हम आउटवर्ड की बात करते हैं तो मीन्स चेंजेस इन रिसोर्सेज एंड इम्प्रूव्स इन टेक्नोलॉजी, बट जब हम पीपीसी कर्व के इनवर्ट कोई कर्व बनाते हैं तो इट मीन्स देयर इज अ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, देयर इज नो एनी चेंज इन टेक्नोलॉजी, देयर इज अ बोल सकते कोई इंप्रूवमेंट हमें टेक्नोलॉजी में देखने को नहीं मिला। ओके, तो इन ऑन दिस बेसिस यू कैन मेक द कर्व। अगर आप शिफ्टिंग का कर्व बनाना सीख जाओगे तो रोटेशन का भी आपको कर्व बनाने आ जाएगा। ओके, तो दीज आर द टू इन पीपीसी वी कैन सी, shifting and rotation. Is it clear? Now the next topic we will discuss in the next class. So thank you class for today.